Alright, this video is about finding and fixing your weak points. ये again 2023 मैं इतना रेपिटेटिव लगता है मुझे कभी कभी, बट यार 2023 मैं एक डिज़ाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, NID, राइट. बट मेरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा वीक थी. मतलब आई कुड ड्रॉ वेल फ्रॉम रेफरेंसेस बट आई कुडंट ड्रॉ शिट फ्रॉम इमेजिनेशन. मतलब मैं सोच नहीं पाता था. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इस स्टेज में, बिकॉज आई हैव ऑल्सो टॉक टू अ बंच ऑफ माई जूनियर्स और उनका भी सेम प्रॉब्लम था कि वो लाइक इमेजिनेशन से ड्रॉ नहीं कर पाते थे. सो या इवेंचुअली लाइक in a span of 6 to 7 months or 8 months probably, I went from zero imagination to like a good 75 to 80 level of imagination. 100 नहीं हो सकता, no, ठीक है. तो मैंने क्या किया ये करने के लिए? इसके लिए मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, अपना कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि कैसे लाइक मेरा बैकग्राउंड क्या है. 2023 मैं इनिशियली जनवरी फरवरी में मुझे रियलाइज हुआ कि शिट मुझे इमेजिनेशन से कुछ नहीं आता. सो आई हैव टू डू समथिंग, राइट. और लाइक एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने बोला कि I started just drawing because firstly I was very inconsistent with drawing itself. So I first built my habit of drawing. ठीक है. उसके बाद I started to do like semi-imagination drawings, imaginative drawings. कि Pinterest देखा and like I saw a human figure over there in a particular angle. ठीक है. मैंने उस एंगल को स्क्यू कर दिया and then I drew the same thing but in a different angle from my imagination. So that's not complete imaginative drawing, that's like semi-imaginative drawing. So I started out from there. Yeah, like didn't really like, it was a very small step but thoda bahut I got the hang of it ki how does it feel. Made myself uncomfortable by doing that. I think that's what most people don't want to do, is make themselves uncomfortable कि लाइक हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम ऑब्जर्वेशन ड्राइंग करते रहेंगे वही मांगा फिगर्स की, ताकि मेरे क्लास वाले बोलें कि देखो मैं कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ. जस्ट मूव ऑन, राइट. मतलब डू स्टफ दैट यू लाइक, इम्प्रूव ऑन स्टफ दैट यू वीक इन जो ये. So yeah, started off with like semi-imaginative drawing. Then there was like a time when like थोड़ा मैं उसको बढ़ाने लग गया. Started doing more of these drawings. And उसके बाद एक टाइम था, I think during August, कि I was pretty weak in human figures as well. So मैंने एक हफ्ता लिया. एक हफ्ते तक मैं सिर्फ human drawings करता था रोज, like 8 to 10 sheets of human drawings every day. ठीक है. Did that for like 7 to 8 days probably, right? And by that time I would have done like 80 to 90 human figures, or maybe 100 human figures from observation, purely observation. And then when मैं फिर से आए like human figures को imagination से drawing करने के लिए, बहुत easily हो गया. like मतलब बहुत ज़्यादा easily हो गया था कि shit bro, मुझे एक हफ्ते पहले तक I couldn't draw shit from my imagination. Now it's like in a span of 1 week I could draw like 5x better from imagination, right? I'm afraid मेरे पास अभी वो sketches होंगे नहीं दिखाने को, but you can check my Instagram. आर्ट अकाउंट है मेरा AS_Vaseer. बहुत पुराना, मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया, बट हाँ चेक कर सकते हो if you want to. जो भी ठीक है. So वो था. Fuck, sorry, I completely sidetracked from the point. The point was fixing of weak points. I like imagination के रैंक पे चला गया. But yeah, उससे लेकिन मैं क्या समझा, उस एपिसोड से मैं समझाऊँ कि I kind of made like a mental protocol for myself कि whenever I find that I'm weak in a particular area, how do I fix that? उसके लिए the protocol that I made was as follows. Find the thing that you're weak in, practice that
for the next 1 to 3 weeks, like go all in on that particular thing. ठीक है, और कुछ मत करो, don't even think about anything else, just for 1 to 2 or 3 weeks, just do that particular thing every single day, or वो do that in abundance, like do a lot of it, ठीक है, for a few weeks, and then when you get back to it, like a few weeks later, now you know how to like do that shit. उसके बाद you don't need to put in as many hours as, मतलब वो सिर्फ 1 to 3 week का पीरियड ही है जब तुम्हें मैक्सिमम एफर्ट डालना है उस चीज़ में, एंड देन फ्रॉम देन ऑन यू कैन लाइक मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्किल फॉर हाउ जितना भी टाइम तुम्हें चाहिए, राइट? क्योंकि आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई रियली प्रैक्टिस ह्यूमन ड्राइंग वाज 2023 अगस्त, ठीक है? उसके बाद से आई हैवंट रियली सीरियसली प्रैक्टिस देम, बट आई एम स्टिल एट लाइक अ गुड लेवल ऑफ ह्यूमन ड्राइंग. I can still do it from imagination, and like I have that skill still maintained, you know. So the point that I'm trying to make here is that जो भी चीज़ तुम्हें लग रही है तुम वीक हो, थोड़ा टाइम उसको बहुत ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, कुछ टाइम तक के लिए, then you'll find कि you have improved in it a lot, and now you don't have to really practice it again and again to maintain that skill. You can just maintain it बिना practice के भी, you know. So yeah, that's the fucking protocol. फिर से रिपीट करो, स्किल लो, जो भी तुम वीक हो 1 to 3 weeks के लिए सिर्फ वही प्रैक्टिस करो, you're all good. That's the protocol that I made for myself. उसके बाद से कोई भी चीज़ थी मैं यही प्रोटोकॉल यूज़ करता था. सो इट स्टार्टेड आउट विद ह्यूमन फिगर्स. उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि कैसे फिक्स करना है, आई स्टार्टेड डूइंग लाइक पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में मैं वीक था, उसके साथ भी सेम चीज़ की. कुछ हफ्ते तक मैंने सिर्फ वही प्रैक्टिस किया. Then compositions. So like in anime you're supposed to practice compositions as well, basically just illustrations and scenes. Also again मैंने like I did like 10 plus बहुत सारी compositions बनाई थी, but for a few weeks I was just about compositions. सिर्फ composition की थी. उसके बाद मेरा composition वाला भी fix हो गया था. ऐसे करते करते I targeted every single weak point that I had, and in a matter of like June, July, August, September, October, November, December, 6 months, I covered almost every single weak point that I had. जितने भी weak points थे मेरे, वो मैंने सिर्फ 5-6 महीने में सारे फिक्स कर दिए सिर्फ इस प्रोटोकॉल के साथ. So yeah, it's pretty cool. I know. खुद की तारीफ करता हूँ मैं, narcissistic. So yeah, वो shit मैंने unknowingly सारे points कवर कर दिए इसी चीज़ में. But it's also important to have like an uncomfortable real talk with yourself, क्योंकि a lot of people are just not comfortable admitting their weak points, you know, कि वो सोचना नहीं चाहते कि वो weak किस चीज़ में, वो बस play along करते रहते हैं अपनी strengths पे, and I think that's good, but उसका अलग time होता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम अपने साथ एक सेल्फ टॉक करो इस बारे में कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है. इफ़ यू फाइंड दैट यू आर स्टक समवेयर, जस्ट तुम खुद एडमिट कर लो प्लीज़ कि लाइक या इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन डू दिस व्हाटएवर मैंने जो प्रोटोकॉल बताया वही तुम करो उस चीज़ के साथ, और तुम इम्प्रूव कर लोगे बहुत ईजिली. इट्स वेरी सिंपल. और उसके बाद जब तुम फाइनली इम्प्रूव कर लेते हो राइट उस चीज़ पे, उसके बाद तुम्हें लगता ही नहीं है कि ये कुछ मुश्किल था. काफ़ी ऑब्वियस है, बट हाँ. सो यार दैट्स द थिंग. भाई अब मैं इसमें वो कैसे डालूंगा टाइम स्टैम्प्स, क्योंकि अब तो मैंने एक ही बार में पूरा बोल दिया. बट या राइट, अलग गाइस यही है, फाइंडिंग वीक पॉइंट्स. have an uncomfortable talk with yourselves about your weak points. Find where exactly you're lacking. Give yourself a span of like 1 to 3 weeks and go all in on that particular weak point and just practice the hell out of it. Okay? And then you'll just come out way stronger, and that's not even a weak point for you anymore. And you repeat that with every single weak point that you have. This usually happens like when you're working towards a bigger thing, right? For me it was design exam, NID. So वो बड़े गोल को अचीव करने के लिए you just break it down to so many smaller goals, and
दैट्स व्हेन यू कैन डू दिस थिंग. क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई लाइक एक चीज़ नहीं है परस्यू करने को, देन इट्स हार्ड टू लाइक कीप स्विचिंग बिटवीन वीक पॉइंट्स. क्योंकि आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम उस टाइम पे, कि जब तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बिगर थिंग क्या परस्यू कर रहे हो, बट फिर भी तुम लाइक स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें अप्रोच कर रहे हो, राइट. वो थोड़ा मुझे लगता है कि दैट्स समथिंग यू शुड अवॉइड. हैव अ बिगर गोल, उसके लिए तुम स्मॉल एम्बिशंस बनाओ और फिर तब ये काम करेगा. तो या, और वो भी लाइक वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा लाइक इज इट रियली इम्पोर्टेंट टू यू. जैसे आई हैव बीन इन अ बंच ऑफ सिचुएशंस क्या टाइम पीरियड्स कि लाइक मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त ये कर रहा है, शिट मुझे ये करना चाहिए, बट आई डोंट मुझे मुझे वो सच में नहीं करना है. मुझे बस लग रहा है कि अगर ये कर रहा है तो मुझे करना चाहिए, राइट. तो वैसी चीज़ों में इंप्रूव करने को कोई फ़ायदा भी नहीं है. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम. यू आर लाइक acquiring a number of skills which are unrelated. अब अगर तुम्हें वो चीज़ सच में सीखने का मन था, लाइक तुम्हें सचमुच में सीखना है, तो प्लीज़ सीख लो. लाइक मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. बट अगर तुम एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें तुम भटक रहे हो, जैसे कि वो जो कूल लग रहा है वो सीख लेता हूँ, you shouldn't do that. Just do what you really want to do, you really want to learn, or something that you have to learn, you know. इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में प्लीज़ गो ahead and learn stuff. It really helps. So yeah, इस पूरे सेक्शन का ये पॉइंट था कि अगर तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है तभी परस्यू करो, वरना वो हफ्ते you would really like working on that thing for the next few weeks. So yeah, that's it guys. Keep creating again.